وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ مزید بڑھیں گے خبروں کی جانب۔ نیٹ امتحان مناسب طور پر تحریر نہ کرنے پانے کے سبب 19 سالہ نوجوان نے خودکشی کر لی۔ تلنگانہ کے ضلع جگتیال کے اٹنور میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس نوجوان کی شناخت، جو انگاڑی بازار کے رہنے والے منوج کے طور پر کی گئی، وہ پیر کی صبح نیٹ کے امتحان کے بعد اپنے کمرے میں نمبروں کو چیک کرنے کے لیے شیٹ کا استعمال کر رہا تھا اور اس نے اپنی کارکردگی سے مایوسی کا اظہار کیا اور پھانسی لے لی۔ منوج کو فوراً ہاسپٹل منتقل کیا گیا، لیکن ڈاکٹر نے انہیں مردہ قرار دیا۔ منوج نے حیدرآباد کو ایک ادارے سے خصوصی طویل مدتی کوچنگ حاصل کی تھی۔ حیدرآباد کے نواح علاقے حیات نگر میں کم عمر طالبہ نے خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق انتہائی اقدام کی وجہ ہنوز معلوم نہیں ہو سکی۔ لڑکی کی شناخت میناکشی کے طور پر کی گئی، جو حیات نگر کے ایک پرائیویٹ اسکول کی 9ویں جماعت کی طالبہ تھی اور اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین تعمیراتی مزدور ہے۔ لڑکی گزشتہ کچھ دنوں سے کسی نامعلوم وجہ سے پریشان تھی اور اس نے اپنے کمرے میں چھت کے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ اس کے ارکان خاندان نے اسے صبح مردہ پایا۔ شہد کی مکھیوں کے حملے میں ایک مزدور کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ضلع آصف آباد کے گولٹی گاؤں میں منگل کے روز زیر زمین کوئلے کان میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق کان میں کام کرنے کے دوران ان مکھیوں نے 4 مزدوروں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں نرسیا سمیت 4 مزدور زخمی ہو گئے۔ تمام زخمیوں کو فوری طور پر بیلمپلی کے ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں 50 سالہ نرسیا کی علاج کے دوران موت ہو گئی۔ نرسیا کے ساتھ ہی مزدوروں نے مطالبہ کیا کہ ان کے ارکان خاندان کو معاوضہ فراہم کیا جائے۔ انہوں نے متوفی کے پسماندگان کے لیے 25 لاکھ روپے کی مالی امداد کا مطالبہ کیا۔ حیدرآباد میٹرو ریل میں ایک مرتبہ پھر تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی۔ کل رات خیرت آباد میٹرو اسٹیشن پر تکنیکی مسائل کی نشاندہی عہدیداروں نے کی، جس کے بعد مسافرین کے ٹکٹ کی رقم واپس کر دی گئی۔ ان مسائل سے میاں پور تا ایل پی نگر راہداری پر میٹرو خدمات کے متاثر ہونے کی اطلاع ہے۔ آندھرا پردیش کے مختلف علاقوں میں ہوئی غیر موسمی بارش نے کسانوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ کرشنا ضلع میں شدید بارش اور تیز ہواؤں کے سبب دھان، مکئی، کیلا اور پپیتے کی فصلیں بری طرح متاثر ہوئی۔ خاص طور پر کیلے کے کاشتکاروں نے شدید مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ تیار فصل طوفانی ہواؤں کی وجہ سے زمین پر گر گئی۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ہر ایکڑ پر تقریباً 1 لاکھ روپے کی لاگت آئی ہے اور وہ حکومت سے فوری مالی امداد کی اپیل کر رہے ہیں۔ دوسری جانب متحدہ مشرقی گوداوری ضلع میں بھی کسان شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ کھیتوں میں دھان سوکھنے کے لیے پھیلا دیا گیا تھا، لیکن اچانک ہوئی موسلادھار بارش سے وہ بھیگ گئی، جس سے اناج خراب ہونے لگا۔ خاص طور پر کونا سیما علاقے میں جہاں دھان کی کٹائی زوروں پر تھی، وہاں بارش نے پوری محنت پر پانی پھیر دیا۔ کانکنڈا ضلع میں بھی دھان بھیگ جانے کے باعث کسانوں کی حالت انتہائی افسوسناک ہو چکی ہے۔ متاثرہ کسانوں نے حکومت سے فوری معائنہ کروا کر معاوضہ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد پاکستان کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان مرکزی وزارت داخلہ کی ہدایت پر بدھ کو مختلف ریاستوں میں ہونے والی سول ڈیفنس ماک ڈرل سے پہلے منگل کو یہاں مرکزی داخلہ سیکریٹری گووند موہن نے ریاست کے چیف سیکریٹریوں کے ساتھ میٹنگ کی اور 244 سول ڈیفنس ڈسٹرکٹ میں مشق کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ میٹنگ صبح ویڈیو کانفرنس کے ذریعے نارتھ بلاک میں ہوئی، جس میں مرکزی وزیر داخلہ سیکریٹری کے ساتھ سول ڈیفنس کے ڈائریکٹر جنرل اور نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کے ڈائریکٹر جنرل سمیت کئی سینئر افسران نے شرکت کی۔ ریاستی اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف سیکریٹریز ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شامل ہوئے۔ میٹنگ میں چیف سیکریٹریز سے کہا گیا کہ وہ تمام ضلعی عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کرے اور ماک ڈرل کی تیاریوں کو حتمی شکل دے۔ چیف سیکریٹریوں سے کہا گیا کہ وہ کل
244 में से 100 हसास तरीन अजला पर खुसूसी तवज्जो दे। इनमें दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर के साथ साथ पुरहुजूम इलाके और जोहरी और फौजी तनसीबात वाले इलाके भी शामिल है। ये मॉडल ड्रिल खास तौर पर पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मगरबी बंगाल, शमाली मशरक़ी रियासतों और दीगर सरहदी इलाकों में की जाएगी। पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग के बाद पहली बार मुल्क में इतने बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल का इनेकाद किया जा रहा है। इसका बुनियादी मकसद किसी भी हमले की सूरत में लोगों को हिफाजत और बचाव की तैयारियों को मजबूत बनाना और किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए लोगों को तैयार करना है। हमले के दौरान सायरन बजने और ब्लैकआउट के बारे में लोगों को आगाह किया जाएगा। इसके साथ साथ लोगों को महफूज मकामात पर ले जाने के लिए दीगर मशक़ें भी की जाएगी। इस दौरान हमले के दौरान अहम तनसीबात को किसी न किसी तरह ढांपने जैसी मशक़ें भी की जाएगी ताकि दुश्मन को उलझाया जा सके। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने मंगल को कहा कि दिल्ली हुकूमत अवाम को 24 घंटे बिजली फ्राहम करने के लिए पुरअज़्म है। आज मंगलपुरी में BRPL सब स्टेशन का इफ्तिताह करने के बाद मोहतरमा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली हुकूमत अवाम को 24 घंटे बिजली फ्राहम करने के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि यहाँ 66/11 kV सब स्टेशन बनाया गया है। इससे इर्द गिर्द की 10 लाख की आबादी को बिला तातुल बिजली की फराहमी होगी। ये एक नई टेक्नोलॉजी का सब स्टेशन है और इसे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस सिमत में काम कर रही है कि किस तरह साफ तवन्नाई के मैदान में दिल्ली को आगे ले जाया जाए। हुकूमत अवाम के मफाद में मुसलसल काम कर रही है। मुल्क भर में मॉक ड्रिल के सवाल पर उन्होंने कहा कि दिल्ली इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली के लोग और अवाम मुल्क के साथ है और हम मरकजी हुकूमत की हर हिदायत पर अमल कर रहे हैं। तवन्नाई के वजीर आशीष सूद ने कहा कि ये गैस पर मबनी गढ़ है, ये बहुत मुफीद और अहम है। आने वाले वक्त में इलाके के लोगों को कम वोल्टेज की परेशानी से राहत मिलेगी। दिल्ली को पावर हब बनाने के लिए ये एक अहम कदम है। कांग्रेसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जात पात की मरदमशुमारी के सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर कहा कि वो कुछ तजावीज़ दे रहे हैं ताकि जात पात पर मबनी मरदमशुमारी जैसे किसी भी अमल में पसमानदा, महरूम और पसमानदा लोगों को इनके हुकूक मिल सके। मिस्टर खड़गे ने कहा कि जब उन्होंने गुज़िश्ता साल मिस्टर मोदी को इस मुतालबे से मुताल्लिक़ खत लिखा तो BJP लीडरों ने उन्हें और कांग्रेस को घेरने की कोशिश की और इन पर मुसलसिल तनकीदें की गई, लेकिन अब वज़ीर आज़म खुद कांग्रेस के इस मुतालबे की गहराई को समझ चुके हैं। इसलिए उन्होंने जात पात की मरदमशुमारी कराने का फैसला किया और इसे समाजी इंसाफ और समाज को बाइख्तियार बनाने के लिए ज़रूरी बताया। मिस्टर खड़गे ने वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए अपने ख़त में कहा कि मैं आपको 16 अप्रैल 2023 को एक ख़त लिखा था और आपके सामने कांग्रेस की तरफ से जात पात की मरदमशुमारी कराने का मुतालबा रखा था। अफसोस कि मुझे इस खत का कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद आपकी पार्टी के लीडरों ने और ख़ुद आपने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस क़यादत पर इस जायज़ मुतालबे को उठाने के लिए मुसलसिल हमले किए। आज आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि ये मांग गहरे समाजी इंसाफ और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाने का मफाद में है। उन्होंने लिखा कि आपने बगैर किसी वाज़ेह वजाहत के ऐलान किया कि अगली मरदमशुमारी जो दरअसल 2021 में होने वाली है, इस जात पात को अभी अलग ज़मरे के तौर पर शामिल किया जाएगा। इस सिलसिले में मेरे पास 3 तजावीज़ हैं जिन पर आप गौर करें। पीर को मिस्टर मोदी को लिखे गए खत में कांग्रेस सदर ने तजवीज़ पेश की कि जात पात की मरदमशुमारी के लिए तेलंगाना मॉडल को अपनाते हुए रिजर्वेशन पर 50% की हद को ख़त्म किया जाना चाहिए और इसके लिए तमिलनाडु की तर्ज पर कानून बने। नेज़ प्राइवेट तालीमी इदारों में दर्ज फहरिस्त कबाइल और दिगर पसमानदा तबके के तलबा को रिजर्वेशन फ्राहम करने के लिए आर्टिकल 15 को लागू किया जाए। उन्होंने मिस्टर मोदी से जात पात की मरदमशुमारी के मामले पर जल्दी तमाम सियासी जमातों से बातचीत करने की अपील की।
मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने आज स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश के ज़ेर मुंतक़िद हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी इम्तहानात के नताइज का ऐलान किया। लड़कियों ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी दोनों इम्तहानात में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसके लिए वज़ीर आला ने उन्हें मुबारकबाद दी। डॉक्टर यादव ने इस मौके पर कहा कि यह कामयाबी लगन, अनथक मेहनत और मकसद के तय अज़्म का नतीजा और सबूत है। रियासत की होनहार बेटियों ने एक बार फिर अपनी बरतरी साबित करते हुए अपने वालिदैन और असातिज़ा के साथ साथ मध्य प्रदेश का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। उन्होंने कहा कि इस साल हाई स्कूल के इम्तिहान में 76.22% और हायर सेकेंडरी इम्तिहान में 74.48% तलबा ने गुज़िश्ता 15 बरसों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कामयाबी हासिल की। हाई स्कूल में बेटी प्रज्ञा जायसवाल ने 500 में से 5% नंबरों के साथ रियासत में पहली पोजीशन हासिल की और हायर सेकेंडरी में भी बेटी प्रियल देवदी ने 500 में से 492 साइंस रियाजी ग्रुप नंबरों के साथ रियासत में पहली पोजीशन हासिल की। उन्होंने कहा कि संगोली की प्रज्ञा जायसवाल ने 10वीं जमात के इम्तिहान में 500 में से 500 नंबरों के साथ टॉप किया। इनका कहना था कि वो इस बच्ची से ज़रूर मिलना चाहेंगे कि उसने ऐसा क्या किया, इसने इतना अच्छा लिखा होगा कि इसे 100% नंबर हासिल हुए। सतना की प्रियल देवदी ने 12वीं जमात के इम्तिहान में रियासत में टॉप किया। उसने 492 नंबर हासिल किए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज फेल होने वाले तलबा मायूस ना हो। नई तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत फेल होने वाले तलबा को एक बार फिर इम्तिहान में बैठने का मौका दिया जाएगा और जो तलबा अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं वो भी दोबारा इम्तिहान में शामिल हो सकते हैं। मंशियात के खिलाफ जंग को वसी पैमाने पर जारी रखते हुए पुलिस ने जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा में 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके इनकी तहवील से ममनुआ मवाद बरामद किया। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस पोस्ट रेशीपुरा की एक पार्टी ने पंजगाम रेलवे क्रॉसिंग पर लगाए गए नाके पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 2 मंशियात फरोशों को धर लिया। उन्होंने गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त परवेज़ अहमद हज्जाम वल्द अब्दुल रशीद हज्जाम साकिन न्यू पलवामा और अनीस मोहम्मद वल्द गुलाम मोहम्मद साकिन करीमाबाद के तौर पर की। बयान में कहा गया कि दोनों एक टाटा सोमो में सफ़र कर रहे थे और इस गाड़ी को भी नाके पर रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान इनकी तहवील से 130 ग्राम चर्च जैसा मवाद बरामद किया गया। इनका कहना है कि दोनों को गिरफ्तार किया गया और गाड़ी को भी जब्त किया गया। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन अवंतीपुरा में एक केस दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस मंशियात की बैक करने के लिए पुरअज़्म है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्क सदर तैयब रजब एर्दोगान गजा शाम की सूरत हाल पर बात की। सदर ने कहा कि इनके अपने तुर्क हम मनसब के साथ मुतादिद आलमी मसाइल पर बहुत अच्छी और नतीजा खैज टेलीफोन कॉल हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने मुत्तहदा प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मैंने अभी तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ बहुत से मौजू पर बहुत अच्छी और नतीजा खैज बातचीत की है, जिसमें रूस की यूक्रेन के साथ जंग, शाम, गजा और बहुत कुछ शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि सदर ने मुझे मुस्तकबिल की तारीख में तुर्की जाने की दावत दी और इसी तरह वो वाशिंगटन डीसी भी आएंगे। कुवैत, सऊदी अरब और अर्दान के कई इलाकों को गर्द गुब्बार के तूफान ने मुतासिर किया। कुवैत में खराब मौसम के बायस 3 परवाज़ों को दम्माम में उतार दिया गया। बैनुल अक़वामी खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गर्द गुब्बार के तूफान बायस कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिफाजती इक़दामात के तहत परवाज़ों को दम्माम जाने की हिदायत की गई। कुवैती सिविल एविएशन के मुताबिक मुसाफिरों की सलामती के पेश नज़र एहतियाती इक़दामात के तहत मिस्र के शहर कायरो और अस्वद से कुवैत आने वाली परवाज़ों को दम्माम रवाना किया गया। वाज़ेह है कि इन दोनों कुवैत में मौसम शदीद गुब्बार आलूद है, जिससे हद निगाह मुतासिर होती है। हवा की रफ्तार भी 35 नाटिकल
70 किलोमीटर फी घंटे से ज़ायद है, जिसकी वजह से हद निगाह भी 300 मीटर से कम थी। खराब मौसमी हालात के बायस कुवैत की पोर्ट्स अथॉरिटी ने बंदरगाहों पर ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह इराक़ के जुनूबी और वस्ती इलाकों में शदीद रेत का तूफ़ान आने के बायस निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई। सांस में तकलीफ के बायस हज़ारों अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि बसरा और नजफ के हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया था। तर्जुमान सैफ बदर के मुताबिक हॉस्पिटलों में लाए गए ज़्यादातर मरीजों को गर्द गुबार के बायस सांस लेने में दुश्वारी का सामना था, ताहम किसी के मरने की इत्तला सामने नहीं आई। रिपोर्ट के मुताबिक शहरी मास्क पहनकर सुनसान सड़कों पर चलते नजर आए। हवा में गर्द इतनी थी कि नजरें बमुश्किल 1 किलोमीटर से आगे देख सकती थी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। इंतखाबी वादे को पूरा करने में नाकामी से बचने वज़ीर आला के नए दावे। बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर का तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब। रेवंत रेड्डी रियासत की आमदनी को लूट रहे हैं और उसे बंडलों में दिल्ली ले जा रहे हैं। तेलंगाना को केसीआर ने 2.5 लाख करोड़ की आमदनी तक पहुंचाया था। वज़ीर आला के तबसरे पर साबिक़ वज़ीर जगदीश रेड्डी का रद्द अमल। आरटीसी जेएसी लीडरों और रियासती पूनम प्रभाकर के दरमियान मुज़ाकिरात कामयाब। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की जानिब से की जाने वाली मौजूदा हड़ताल मुलतवी। वज़ीर सयाहत जोपल्ली कृष्णा राव ने हैदराबाद के गच्चीबौली स्टेडियम का किया दौरा। स्टेडियम में मुनक्किद होने वाले मिस वर्ल्ड मुकाबलों की तैयारी का किया मुआयना। मौसर इंतजामात करने की दी हिदायत। जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कन्नान ने कुकटपल्ली जोन का दौरा करके जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। मौसम बरसात से ख़ाब तरक्याती कामों की रफ्तार में तेजी, अवामी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने पर दिया जोर। हम चाहते हैं कि हुकूमत पहलगाम हमले का मौसर जवाब दे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का जम्मू कश्मीर में मीडिया से खिताब। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों के साथ लिया जायजा इजलास। 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट में मश्क की तैयारियों पर किया तबादले ख्याल। कुवैत, सऊदी अरब और अर्दान में गर्द गुब्बार का तूफान से कुवैत में खराब मौसम के बायस 3 परवाजों को दम्माम में उतार लिया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life.
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.